ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 8 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस सैट नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ जो क्वेश्चंस ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਨੰबर 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ स्टार्ट द वीडियो। सब तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन प्लान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੋਰਟਾਈਮਰ ਵਿਲਰ, ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ, ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏ.ਵੀ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਰਟਾਈਮਰ ਵਿਲਰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੋਰਟਾਈਮਰ ਵਿਲਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੇ। ਬਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮੋਰਟਾਈਮਰ ਵਿਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एक्ट्स लिस्टड बिलो। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 1773 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1774। 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ किस एक्ट के अधीन किया गया सी? 1773 रैगूलेटिंग एक्ट के अधीन। नैक्सट है पिट्स इंडिया एक्ट, यह आया सी 1784 के विच। उस तो बाद चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट है यह बेसिकली 4 एक्ट आए सी, इन्हों के नाम याद रखो। चार्टर एक्ट सब तो पहला आया सी 1793, उस तो बाद 1813, उस तो बाद 1833, नैक्सट आया सी 1853। यह 4 एक्ट आए सी चार्टर एक्ट। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो आए सी 2, ये टोटल आए सी 2। सब तो पहला आया सी 1861 के विच, दूजा आया सी 1892 के विच। यानी सब तो पहला अपने कोल किहड़ा आएगा रैगूलेटिंग एक्ट 1773 यानी 4th पॉइंट आएगा। उस तो बाद नैक्सट आएगा अपने कोल पिट्स इंडिया एक्ट यानी 3rd पॉइंट आएगा। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल आएगा चार्टर एक्ट यानी पहला पॉइंट आएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल सैकेंड आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, यानी 4312 जो कि आपको दिता गया है डी ऑप्शन के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन। नैक्सट अपने को 3 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन माउंटेन्स एंड इट्स रिवर्स एंड सिलेक्ट राइट वन। यानी आपको पूछा गया है स्टेटमेंट्स दी गई ने आपको हिमालयन माउंटेन्स के रिलेटेड और इसदियाँ नदियाँ के रिलेटेड आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट है जी सही दी गई है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द हिमालयन माउंटेन्स आर यंग, यानी जो हिमालयन माउंटेन्स ने वो कि ने यंग ने, वीक ने और फ्लैक्सीबल ने इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। फस्ट है अपने को। नैक्सट अपने को सैकेंड जो स्टेटमेंट दी गई है हिमालयज आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन यूथफुल स्टेज। 3rd पॉइंट है बोथ आर रॉन्ग बोथ आर राइट, डी ऑप्शन।
ਇਹ 4 ऑप्शन दिते गए ने और इन्हों के जो सही ऑप्शन दे रखे आपां नूं वो दे रखे आपां नूं डी ऑप्शन बोथ आर राइट। जो हिमालयन माउंटेन्स ने यह यंग ने, ठीक है, और वीक ने, कमज़ोर ने और फ्लैक्सीबल ने इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सैकेंड है जो हिमालयाज ने यह डाइसैक्ट होंगे ने फास्ट फ्लोइंग रिवर्स तो, जो कि यूथफुल स्टेज के विच ने जिहड़े बाइसैक्ट करते सी डाइसैक्ट करते सी सॉरी हिमालयाज नूं फास्ट फ्लोइंग रिवर्स नाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन बोथ आर राइट। नैक्सट अपने को फोर्थ क्वेश्चन जिस दे विच पूछा गया है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज़ इंजॉयड बाय होम, यानी जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया के विच इस जी शक्ति है वो किस कोल है? सुप्रीम कोर्ट कोल है, नैक्सट है सारे कोर्टां कोल है, नैक्सट है सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट या फिर नन ऑफ द कोर्ट। जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया के विच इसकी जो पावर है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोल, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, यानी बोथ द कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोथ। इन्होंने दोनों कोर्ट्स कोल की राइट है पावर है, यह है जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन। नैक्सट अपने को फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, यानी आर्टिकल 1 जो है आर्टिकल 1 इंडियन संविधान के पूछा गया है, यह की डिस्क्राइब करता है? आ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आ क्वासी फैडरल स्टेट, नैक्सट है आ फेडरेशन या फिर आ कॉन्फेडरेशन। जो आर्टिकल 1 है यह डिस्क्राइब करता है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेटां का संघ नूं डिस्क्राइब करता है, जो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपने को ऑप्शन आ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नैक्सट अपने को सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रिस्पोंसिबल फॉर एसिड रेन, यानी केड़ा कंपाउंड है केड़ा यौगिक है जो कि रिस्पोंसिबल है जिम्मेवार है किस दे लई? एसिड रेन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इस दे विच जो सही उत्तर अपने को है नाइट्रोजन ऑक्साइड और फोर्थ है अपने को सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है जो ये एसिड रेन के लिए कंपाउंड्स ने जोड़े वो रिस्पोंसिबल ने, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना बी ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों जोड़े कंपाउंड ने वो रिस्पोंसिबल ने एसिड रेन के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन। नैक्सट है सेवंथ नंबर क्वेश्चन विच इज़ द हार्डेस्ट सबसटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के विच जो हार्डेस्ट सबसटेंस होंदा है उसका नाम पूछा गया। ऑप्शन है अपने को स्कल बोन्स, टुथ एनिमल, फिंगर नेल या फिर नी कैप। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो अपने को सब तो सख्त सबसटेंस है ह्यूमन बॉडी के विच उसका नाम है टुथ एनिमल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन टुथ एनिमल। नैक्सट है 8th नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट बिटवीन, जो बैटल हुई सी खानवा की बैटल ये किस किस दे विचकार लड़ी गई सी? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, बाबर एंड राणा सांगा, अकबर एंड राणा सांगा। इस दे विच आंसर जिहड़ा बनेगा अपने कोल वो किहड़ा बनेगा? जो बैटल ऑफ खानवा सी ये बेसिकली लड़ी गई सी बी ऑप्शन बाबर एंड राणा सांगा के विचकार। बाबर और राणा सांगा के विचकार जो बैटल लड़ी गई सी वो लड़ी गई सी बैटल ऑफ खानवा। कदों लड़ी गई सी? ये लड़ी गई सी 16 मार्च 1527 ईस्वी नूं। 16 मार्च 1527 यानी 1527 दे विच जो बैटल ऑफ खानवा है यह लड़ी गई सी बाबर एंड राणा सांगा के विचकार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन। इस तो इलावा जो खानवा नाम का प्लेस है यह कित्थे है? यह भरतपुर जिले के विच है, भरतपुर के विच। भरतपुर कित्थे है? राजस्थान के विच। यानी बेसिकली यह जो बैटल है लड़ाई है वह राजस्थान के भरतपुर जिले के लड़ी गई सी खानवा नाम के प्लेस के उपर। नैक्सट है 9th नंबर क्वेश्चन वेयर डू यू फाइंड टैंपल ऑफ एंकॉरवैट। एंकॉरवैट नाम का टैंपल है जिहड़ा मंदिर है वह कित्थे लोकेटेड है? थाईलैंड के विच, मलेशिया के विच, कंबोडिया के विच या फिर म्यांमार के विच। जो एंकॉरवैट नाम का टैंपल है यह लोकेटेड है अपने को कंबोडिया के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन कंबोडिया। नैक्सट है 10th नंबर क्वेश्चन सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया इज। सिटी ऑफ लेक्स यानी लेक्स का जो शहर है वो किस नूं कहा जाता है? लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर उदयपुर। जो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है वह कहा जाता है उदयपुर नूं, उदयपुर सिटी नूं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन उदयपुर सिटी। और यह कित्थे लोकेटेड है? राजस्थान के विच है। राजस्थान के विच लोकेटेड है उदयपुर सिटी जिसनों सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और यह जो उदयपुर सिटी है वह सिटी जो है उदयपुर सिटी यह वही सिटी है जो कि मेवाड़ किंगडम की राजधानी सी,
यानी जो मेवाड़ किंगडम सी उसकी जो राजधानी सी वो तुसीं याद रखो, उसका नाम है उदयपुर, राजस्थान दे विच। A seal found from Mohenjo-daro has depict a god with 3 heads and horns surrounded by animals. Who is the god in the seal? यानी एक मोहर है जिहड़ी फाउंड हुई सी मोहनजोदारो दे विच। मोहनजोदारो है जिहड़ी ये बेसिकली एक अपने कोल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी एक साइट है जिसका नाम है मोहनजोदारो। आपां नूं पुछया गया जो इस दे विच एक गोड और 3 हैड्स मिले सी हॉर्नस, जिस दे विच एनीमल्स दे सिंग वगैरह मिले सी। आपां नूं पुछया गया इस दे विच जो गोड सी इस सील दे उपर वो किहड़ा गोड सी, किहड़ा परमात्मा की फोटो सी। आपां नूं पुछया गया किस गोड की फोटो सी जो इस सील के उपर मोहर के उपर बनाई गई सी। तुहाडे कोल ऑप्शन है ब्रह्मा, इंद्रा, पशुपति या फिर यामा। इस दे उपर जो फोटो लगी गई सी यानी इस दे उपर जो सील के उपर गोड देखा गया सी वो किहड़ा सी, वो सी पशुपति। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन पशुपति गॉड। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। यानी दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो पूछा गया है किहड़ी है। अपने ऑप्शन ने टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरनिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकैडमिक, टू प्रमोट हारमनी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट है 4th लास्ट ऑप्शन अपने कोल टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पैक्ट द नैशनल फ्लैग। जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो है बी ऑप्शन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकैडमिक। यह जो है अपने कोल एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा अपने कोल वो बनेगा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकैडमिक। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच वो कितनियां ने 11 ने, और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये 86th अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई सी 2002 ईस्वी दे विच। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच बोरो की गई सी USSR तो, जिसनों प्रेजेंट टाइम पर रशिया बोलिया जाता है। पहला इसका नाम से सोवियत यूनियन, ठीक है, ये याद रखना है। और प्रेजेंट दे इसका जो नाम है वो है रशिया। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, कलिंगा प्राइज जो है ये एस्टैबलिश किया गया सी 1951 ईस्वी के यूनैस्को के द्वारा। किस दे इनीशिएटिव के दौरान जो ये यूनैस्को के द्वारा ये जो प्राइज़ है कलिंगा प्राइज़ वो स्टार्ट किया गया सी, जिस साइंस फील्ड के जो अवार्ड दिता जाता है। तुहाडे कोल ऑप्शन ने CV रमन, जगदीश चंद्र बोस, बिजू पटनायक या फिर S राधा कृष्णन। जो अपने कोल कलिंगा प्राइज़ है यही दिता जाता है इनीशिएटिव ऑफ विजू पटनायक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपने कोल सी ऑप्शन विजू पटनायक, जो कि फादर ने नवीन पटनायक के। नवीन पटनायक के फादर ने जिन्हों का नाम है बिजू पटनायक। और नवीन पटनायक कौन ने, यह ने CM ऑफ उड़ीसा, CM ऑफ उड़ीसा यानी मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के। और ये तो याद रखना है इन्हों के इनीशिएटिव के लिए जो कलिंगा प्राइज़ है यह 1951 ईस्वी के यूनैस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया सी बिजू पटनायक के इनीशिएटिव के उपर। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर्स एंड देयर कैपिटल्स इज इनकरैक्टली मैचड। यानी एक पासे अपने कोल रूलर्स गिवन ने, दूजे पासे आपां कैपिटल्स गिवन ने यानी राजधानियां गिवन ने। इन्हां दे विच पूछा गया है किहड़ा इनकरैक्टली मैच किया गया है। चोलाज थंजावुर, चालुक्याज ऐहोल, पांड्याज हेलेबिड या फिर सातवाहनाज इसका है अमरावती। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो सही उत्तर दे रखे आपको सॉरी जो अपने कोल इनकरैक्टली मैच किया गया वो किया गया है पांड्याज हेलेबिड। जो पांड्याज की राजधानी सी वो किहड़ी सी, मदुरई। मदुरई जो है ये है राजधानी पांड्याज की, बट इन्होंने मैच करके किस दे नाल हेलेबिड के नाल, इसलिए अपना रॉन्ग हो जाएगा 3rd C ऑप्शन। और मदुरई जो है ये कितने है तमिलनाडु के विच। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। यानी किहड़ा डिसीज़ है जिसनों ब्रेक बोन फीवर के नाम नाल भी बुलाया जाता है। टाइफाइड, रेंटिस, येलो फीवर या फिर डेंगू। जो डेंगू फीवर है इसनों ब्रेक बोन फीवर के नाम नाल भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डेंगू। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिलेटेड आपको पूछा गया है कि स्टेटमेंट सही नहीं है। तो को ऑप्शन है इट्स टाइम पीरियड इज 24 हर्ज, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो है 24 घंटे। इट्स एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। नेक्स्ट है 3rd, इट इज फिक्सड इन स्पेस। लास्ट ऑप्शन है अपने कोल इट रिवॉल्व्स फ्रॉम वैस्ट टू ईस्ट ओवर द इक्वेटर।
ये 4 ऑप्शन दिते गए हैं। आपां नूं पूछा गया नॉट करैक्ट, यानी गलत जो स्टेटमेंट है वो पूछी गई है। इस दे विच जो गलत स्टेटमेंट है वो है सी ऑप्शन, इट इज़ फिक्सड इन स्पेस। जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंदे ने ये फिक्स नहीं होंदे, ये मूव करते रहते हैं, इसलिए राइट आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। ये फिक्स नहीं होंदे, ये होंदे ने ये मूव करते रहते हैं, ये तुहानूं याद रखना है। और ये रिवॉल्व करते हैं वैसट तो ईस्ट की तरफ इक्वेटर के उपर, ये तो याद रखने ने। और इसका टाइम पीरियड कितना 24 घंटे का है। और इसकी जी एंगूलर स्पीड है वो किस दे कोल है, अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यानी जिन्ने टाइम के धरती अपने धुरे के दुआले चक्कर लगाती है उसके मुकाबले जिन्नी स्पीड बनती है अर्थ की उन्नी ही स्पीड इसकी एंगूलर स्पीड होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स ने सही ने, बट जो अपने को सी स्टेटमेंट है ये गलत है। ये मूव करते रहते हैं, यानी रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, बट ये फिक्स नहीं है। नैक्सट अपने को 17 नंबर क्वेश्चन, इन इलैक्ट्रिक मोटर, यानी इलैक्ट्रिक मोटर के रिलेटिड आपको स्टार्ट 4 स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने, पूछी गई कि स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिक एनर्जी, इलैक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, इलैक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट है मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिक एनर्जी। जो इलैक्ट्रिक मोटर है यह कन्वर्ट करती है इलैक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, इलैक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के विच कन्वर्ट किया जाता है इस इलैक्ट्रिक मोटर के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन। नैक्सट है 18 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डज द पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट, यानी पूछा गया है पंचायती राज सिस्टम जो है यह किस केंद्र शासित प्रदेश के एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, दिल्ली और चंडीगढ़। जो पंचायती राज सिस्टम है जोड़ा यह दिल्ली के एग्जिस्ट नहीं करता। इसका आंसर है सी ऑप्शन दिल्ली। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो भारत दीयां 3 स्टेट्स ने जिन्हां दे विच पंचायती राज सिस्टम जिहड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, वो किहड़ियां ने, नागालैंड, मेघालय और लास्ट है मिजोरम। यह भारत दीयां 3 स्टेट्स ने जिन्हां दे विच पंचायती राज सिस्टम है जिहड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। इत्थे भी है जिहड़ा पंचायती राज सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पूछा जाए पहला स्टेट भारत का किहड़ा सी जिस दे विच पंचायती राज सिस्टम है जिहड़ा अडॉप्ट किया गया सी, उसका आंसर होएगा राजस्थान। राजस्थान के द्वारा पंचायती राज सिस्टम है जिहड़ा यह 2 अक्तूबर 1959 को अडॉप्ट कर लिया सी। और राजस्थान का एक जिला सी जिसका नाम सी नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर नाम का जिला सी एक राजस्थान के विच, जिथे पहली बार 2 अक्तूबर 1959 ईस्वी को यह पंचायती राज सिस्टम है जिहड़ा अडॉप्ट किया गया सी। नैक्सट है 19 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, यानी आपको पूछा गया है विटामिन के दे कारण केड़ा जिहड़ा रोग है वो हो सकता है। तो ऑप्शन है न्यूरिटिस, फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूम, या फिर ब्लास्टोसाइट्स फॉर्मेशन ऑफ यूटेरस। दिते गए 4 ऑप्शनों के विच जो विटामिन के दे कारण जो रोग होंदा है उसका नाम है फेलियर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के विच फेलियर देखने को मिलता है, यह कारण है विटामिन के का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन। नैक्सट है 20 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सैक्रटरी इन लोक सभा विद इफैक्ट फ्रॉम 1 सितंबर, यानी 1 सितंबर को पूछा गया है लोक सभा के विच जो सैक्रटरी बने सी उन्होंने नाम पूछा गया। उत्पल कुमार सिंह, एडवर्ड कुमार सिंह, अमित प्रकाश यादव या फिर हरप्रीत सिंह सुडन। दिते गए 4 ऑप्शनों के विच जो लोक सभा के सैक्रटरी बने सी वो बने सी उत्पल कुमार सिंह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन, उत्पल कुमार सिंह। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो प्राइवेट सैक्रटरी बने सी उन्होंने नाम भी याद रखना है। ये भी 2020 के बने सी, इन्हों का नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इन्हों अपॉइंट किया गया सी एज द न्यू प्राइवेट सैक्रटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के कौन बने सी, राष्ट्रपति के भी रिसेंटली बने सी प्राइवेट सैक्रटरी यानी निजी सचिव, उन्होंने प्रवीण सिद्धार्थ, वी प्रवीण सिद्धार्थ। इन्हों अपॉइंट किया गया सी एज द प्राइवेट सैक्रटरी ऑफ द प्रेजिडेंट। नैक्सट है 21 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलैक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डिवेलपमेंट बैंक ग्रुप। अफ्रीकन डिवेलपमेंट बैंक ग्रुप के जोड़े प्रेजिडेंट बने सी उन्हों का नाम पूछा गया, यह री इलैक्ट हुए हैं उन्हों का नाम पूछा गया।
जो इस दे रीइलैक्ट ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਿਨਵੋਮੀ ਐਡੀਸਨ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਿਨਵੋਮੀ ਐਡੀਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਅਫਰੀਕਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਬਿਦਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਿਦਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਅਫਰੀਕਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਬਿਦਜ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ किस देश के विच लोकेटेड है, यानी किस देश के विच लोकेटेड है अबिदजान नाम का प्लेस। नैक्सट है 22 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वूमेन डायरैक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के विच पहली महिला DG कौन बनी है, डायरैक्टर जनरल कौन बनी है? तुहाडे कोल ऑप्शन ने रीना रे, उषा पड़ी, रेनू स्वरूप या फिर नीलम साने। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो पहली महिला डायरैक्टर जनरल बनी है सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, उन्होंने नाम है उषा पड़ी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन उषा पड़ी। नैक्सट है 23 नंबर क्वेश्चन, ई कॉमर्स वैबसाइट है जिसका नाम है मिंत्रा, इसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसनों बनाया गया है रिसेंटली? तो ऑप्शन है कृति सनन, नैक्सट है दिशा पटानी, क्यारा अडवाणी या फिर जैकलिन फर्नांडिस। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो ई कॉमर्स वैबसाइट है जिसका नाम है मिंत्रा, इन्हों के द्वारा अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उन्होंने बनाया गया कायरा अडवाणी, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन कायरा अडवाणी। नैक्सट है 24 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, यानी एक किताब लिखी गई है, इस दे जिहड़े ऑथर ने उन्होंने नाम पूछा गया है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तुहाडे कोल ऑप्शन ने ट्विंकल खन्ना, शोभा दे, विवेक अग्निहोत्री या फिर करण जौहर। जो बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है द बिग थॉट्स ऑफ लव, इसनों लिखा है करण जौहर ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन करण जौहर। नैक्सट है 25 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के जोड़े ब्रांड एम्बेसडर बने ने उन्हों का नाम पूछा गया। तो ऑप्शन ने विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह या फिर राजकुमार राव। जो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप है इसके जोड़े ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उन्होंने नाम है आयुष्मान खुराना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भी ऑप्शन आयुष्मान खुराना। सो ये सी 25 क्वेश्चनस जिस दे विच आपां ने 25 क्वेश्चनस विद एक्सट्रा इनफॉर्मेशन कवर किए हैं इस सैट नंबर 8 दे विच। यह क्वेश्चन तुहाडे सब दे लिए है जिसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच लिख के जरूर दसना है। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, हु हैज़ ऑफिशियली बिकम द ओल्डेस्ट पॉप इन हिस्टरी, यानी इतिहास दे विच जो सब तो बुढ़े पॉप बने ने उन्हों का नाम पूछा गया। ये ऑफिशियली तरीके नाल बने ने ओल्डेस्ट पॉप इतिहास दे विच, इन्हां दा आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच लिख के जरूर दसना है। सो ये सी सैट नंबर 8 दे विच जिस दे विच आपां ने काफ़ी क्वेश्चनस कवर किए हैं विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर तुहानूं ये सीरीज़ वधिया लगी हो तो इस सीरीज़ नूं लाइक करो, शेयर करो और जेकर तुहाने साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस करो। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट पंजाब पटवारी के स्पैशल नोट्स परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। ये सारे सबजैक्ट्स के जोड़े नोट्स ने वो प्रिपेयर किए गए हैं पंजाब IQ टीम के द्वारा। 85 मार्क्स का जोड़ा मटीरियल है वो कवर किया जाएगा इन्होंने स्पैशल नोट्सों के। इन्हों की जी टोटल कीमत है वो है 2000 रुपया। अगर तुम 2000 के नोट्स परचेज करते हो तो तुम्हें 10% का जो डिस्काउंट है वो दिता जा रहा है और 1800 रुपये के जो स्पैशल नोट्स ने वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं पंजाब IQ टीम के द्वारा। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट GK के परचेज नहीं करना चाहता तो वह आ सारे सबजैक्टों के जोड़े नोट्स ने उन्होंने परचेज कर सकता है। पंजाबी व्याकरण, एग्रीकल्चर, मैंसुरेशन प्लस मैथ और कंप्यूटर IT, इन्हों के 65 नंबरों का जो मटीरियल है वो कवर किया जा रहा है और इन्हों की जी कीमत है वो है ओनली 1000 रुपया, 1000 रुपीज़। और यह नोट्स तो PDF फॉर्मेट के पंजाब IQ टीम के द्वारा सेंड किए जाएंगे और इन्हों की जी लैंग्वेज होएगी वो होएगी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के ये जोड़े नोट्स ने वो प्रिपेयर किए गए हैं पंजाब IQ टीम के द्वारा। इस तो इलावा अगर कोई स्टूडेंट नोट्सों तो बाद गैस पेपर परचेज करना चाहता है जिसके सारे MCQs बनाए गए हैं 6500 प्लस ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन ने जिसके एक क्वेश्चन रहेगा जिस तरह के आपने क्वेश्चन कवर किए हैं इस टैसट के सैट नंबर 8 के इस प्रकार के ही क्वेश्चन ने जोड़े इस गैस पेपर के पाए गए हैं। 6500 प्लस क्वेश्चन ने जोड़े बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ने, इसलिए यह मोस्ट रिकमेंडेड गैस पेपर होएगा। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है। यह गैस पेपर तो एग्जाम के बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होएगा क्योंकि इस सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पाए गए हैं और इसकी जी
कीमत है वो है 1000 रुपया, बिल्कुल नॉमिनल कीमत है जी रखी है गई है इस गैस पेपर की। और इस जो डिस्काउंट है वह भी दिता जा रहा है और 200 रुपये का तो डिस्काउंट दिता जा रहा है। और इसकी जी फाइनल कीमत रखी गई है वो रखी गई है वो है 800 रुपया, यानी 800 रुपये के यह 6500 प्लस ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन का गैस पेपर पंजाब IQ टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है बेस्ट कंटेंट के नाल। इस दे विच पेमेंट जो ऑप्शन है इत्थे देख सकते हो तुसी, इस प्रकार नाल तुसी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। तुहानू पेमेंट तो 15 मिनट बाद तुहानू यह जिहड़ा गैस पेपर और नोट्स ने वो सेंड कर दिए जाएंगे पंजाब IQ टीम के द्वारा। यह लास्ट 35 दिन के लिए तुहानू बहुत ज़्यादा हैल्प करेगा यह गैस पेपर और नोट्स। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तुहानू इस नोट्स के रिलेटेड तो तुसी WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। 7009868826 WhatsApp नंबर है, इस उपर कॉल है जी अलाउड नहीं है। इस उपर तुहाने मैसेज कर देना है, विदिन 1 आवर के तुहानू इस WhatsApp नंबर तो रिप्लाई मिल जाएगा। सो इस सैट नंबर 8 के बस इन्ना ही, मिलते हाँ सैट नंबर 9 के। सो थैंक यू सो मच। अगर तुसी इस सीरीज़ की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी साडा जिहड़ा टैलीग्राम है ऑफिशियल चैनल जिसका नाम है पंजाब IQ, उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे जिहड़े सारियां PDFs ने तुहानूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अवेलेबल करवाई जांदियां ने, जो भी तुहानूं इस चैनल के उपर मॉक टैसट प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन्हां दियां सारियां PDF तुहानूं साडे टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ तो मिलणगियां। टैलीग्राम चैनल में भी जरूर ज्वाइन करो। सो थैंक यू सो मच।